رضوان حسنی صاحب کی دلچسپی نثر اور شاعری دونوں سے ہے. پچھلے 5 سال سے اردو گھر کے صدر ہیں اور بہت ہی احسن طریقے سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. آج کے کی نوٹ اسپیکر ہیں. آپ سے بھی درخواست ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. ہیومینٹی کے سربراہ جناب شیخ اعجاز صاحب اظہار کریں. صاحب صاحب کی اجازت سے کچھ میں پرانے زمانے کی کچھ 2 بات کرنا چاہتا ہوں. اجازت ہے؟ معزز خاتون حضرات السلام علیکم. اور سب سے پہلے تو محترمہ نیلوفر عباسی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو اس محفل خاص میں مدعو کیا اور مونا شہاب سے کافی مدت کے بعد ملاقات کرائی. مجھے یاد ہے وہ زمانہ جب خلیل الرحمان صاحب عالمی اردو کانفرنس منعقد کراتے تھے. وہیں مشہور زمانہ شاعروں، ادیبوں اور قلم کاروں سے ملاقاتیں ہو جاتی تھیں. مونا شاہ نہ صرف اچھی شاعرہ ہیں بلکہ ان کو ادبی تخلیقات کو جانچنے کا ہنر بھی آتا ہے. یہ ملکہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا. ان کی موجودہ کتاب ستارہ رقص میں ہے ادب و شاعری میں ایک عمدہ اضافہ ہے. اتنے بہت سارے ارباب علم و ہنر نے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا ہے کہ میرے لیے کچھ نہیں بچا. میں نے تقریباً پوری کتاب پڑھ لی ہے. ہر شعر مجھے اچھا لگا. چند اشعار جو مجھے بہت اچھے لگے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے. عرض کر وفا کی راہ میں اتنا نہ آزمانا مجھے، وفا کی راہ میں اتنا نہ آزمانا مجھے کہ بے وفا ہی سمجھنے لگے زمانہ مجھے. اور شعر ہے رشتے ناتے سب بے رنگ ہو جاتے ہیں، رشتے ناتے سب بے رنگ ہو جاتے ہیں، تنگی میں اپنے بھی تنگ ہو جاتے ہیں. اور شعر ہے، یہ شعر ذرا ملاحظہ فرمائیے. لپٹی تھی سوکھی بیل کسی سبز پیڑ سے، لپٹی تھی سوکھی بیل کسی سبز پیڑ سے، پھر بیل سبز ہونے لگی پیڑ مر گیا. اور یہ شعر مجھے بہت پسند آیا. اس سے معلوم ہوتا کہ ماشاءاللہ آپ کو شطرنج سے بھی یا تو آپ کھیلتی ہیں جانتی ہیں، کیونکہ شطرنج میں پیدل سے بادشاہ کی مات ہونا سب سے نچلا درجہ ہے. تو یہ شعر ہے شاہ پیادے سے آن ٹکرایا، شاہ پیادے سے آن ٹکرایا، کس عجب چال سے یہ مات کھلی. اچھا یہ شعر ملاحظہ ہو. مزہ تو جیت کا مونا فقط 2 پل کا ہوتا ہے، مزہ تو جیت کا مونا فقط 2 پل کا ہوتا ہے، یہ بازی پیار کی کھیلی ہے ہم نے ہار جانے کو. بس آخر میں پتہ ہے ان کا مجھے پسند آیا تو میں اس کو سنانا چاہتا ہوں. قطع ہے چھت گر گئی مکان کی دیوار رہ گئی، اور میں ہوا سے برسر پیکار رہ گئی، ساتھی تمام غیر قبیلے سے جا ملے اور میں سنبھالتی ہوئی دستار رہ گئی. شاعر اپنے دور کا نمائندہ ہوتا ہے، تاریخ داں ہوتا ہے. 2 مصروں میں وہ سب کچھ سمیٹ لیتا ہے. فیض احمد فیض جب یہ کہتے ہیں کہ کچھ محتسبوں کی خلوت میں کچھ واعظ کے گھر جاتی ہے، کچھ محتسبوں کی خلوت میں کچھ واعظ کے گھر جاتی ہے، ہم بادہ کشوں کے حصے کی اب جام میں کم تر جاتی ہے، تو اس وقت کی جاگیردارانہ اور استحصالی نظام کی مکمل منظر کشی ہو جاتی ہے.
رضوان حسنی صاحب کی شاعری میں بھی اپنے دور کی عکس بندی ہے. سنجیدہ اور مزاحیہ دونوں انداز کی شاعری کرتے ہیں. زمانہ طالب علمی سے شعر موضوع کرنا شروع کر دیے تھے. پچھلے 5 برس سے اردو گھر کے صدر ہیں اور بہت احسن طریقے سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. آج کے کی نوٹ اسپیکر ہیں جناب رضوان حسنی صاحب. تشریف لائیے. صدر مجلس ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ، میلینڈ سے آئی ہوئی شاعرہ مونا شہاب صاحبہ، دیگر مہمانان گرامی اور منتظمین محفل کو میرا سلام. جیسے بھی میرے تعارف میں بتایا گیا، میرا تعلق اردو گھر سے ہے. چند ہفتے قبل جب ہمیں پتہ چلا کہ ڈاکٹر فاطمہ حسن یہاں تشریف لا رہی ہیں تو ہم اس بابت ہم نے گفتگو شروع کر دی کہ ان سے کس طریقے سے بیٹھک رکھی جائے، کیا کیا جائے. ابھی ہم یہ بات ہی کر رہے تھے کہ محترمہ نیلوفر عباسی نے یہ مجدہ سنایا، یہ بتایا کہ بھائی یہاں پہ مونا شہاب بھی آ رہی ہیں اپنی کتابی تقریبی پذیرائی کے لیے. اب ہمارے لیے مسئلہ گناہ ہو گیا کہ اب ایک ہی اختتام ہفتہ ہمیں دو محافل میں کس طرح شرکت کریں گے. تو یہ مسئلہ بھی ہمارا قمر علی فاؤنڈیشن نے اور محترمہ نیلوفر عباسی نے حل کر دیا، اور آج کی محفل میں ہماری دونوں ہی جید شخصیات سے ملاقات ہو رہی ہے. یہ ہماری بہت خوش نصیبی ہے. مجھے نیلوفر صاحبہ نے کہا کہ آپ ان کی کتاب پہ بات کیجئے. مجھے کتاب PDF بھی روانہ کی انہوں نے. تو میں نے سچی بات یہ کہ پہلے میں نے کہا کہ اتنے کم وقت میں میرے لیے ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ پوری کتاب پڑھ کر اس پہ تبصرہ کرتا ہے. میں اسے یہ نہیں کہ آدھی کتاب پڑھوں، جزوی کتاب، پوری کتاب پڑھ کے ہی اس پہ تبصرہ کرتا ہوں. میں نے یہ اندازہ کیا کہ میری جو مصروفیات ہیں مجھے اجازت نہیں دیں گی. تو لیکن ہوا یہ کہ جب PDF آ گئی تو میں نے اس کی ایک وقت گردانی شروع کی. تو مجھے اتنا اچھا لگا، وہ اتنی اچھی لگی مجھے شاعری کہ میں نے ایک حمید شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے پاس، ان کی کتاب کا میں تبصرہ لکھ رہا تھا. تو میں نے کہا کہ بھائی ذرا اگر میرے پاس مہلت ہوگی تو میں ان سے اجازت لے لوں گا. تو مجھے اللہ کا شکر ہے ان کے پاس اتنی ایمرجنسی نہیں تھی. تو میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا اور مجھے بہت اچھی لگی کتاب، اور میں اسی پہ کچھ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. جیسے ذکر کیا کہ کتاب ستارہ رقص میں ہے، مونا شہاب کی تیسری کتاب ہے، تیسرا شعری مجموعہ ہے. اس کتاب کے بارے میں جنہوں نے نہیں پڑھا میں ان کو بتا دوں، اس کتاب کے 4 حصے ہیں. سب سے بڑا حصہ غزلیات کا ہے، اس کے بعد دوسرا حصہ نظموں کا ہے جس میں مورب اور پابند دونوں قسم کی نظمیں موجود ہیں. تیسرا حصہ قطعات کا ہے، اور پھر آخری حصہ جو ہے متفرق اشعار کا. کئی چیزیں میں نے کوٹ کی تھی، میں آپ کو سب نہیں سناؤں گا کیونکہ بہت وقت طویل ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ انسان کا ماحول، اس کی شناخت اور اس کی وابستگیاں شعوری ہو یا لاشعوری اس کے فکری رویے اور کردار سازی پر گہرا اثر ڈالتی ہیں. مونا شہاب صاحبہ ایک تعلیم یافتہ پاکستانی نژاد امریکی مسلمان خاتون ہیں. ان کی شناخت کی مختلف پہلو بعض لوگوں کو ہائفنیٹڈ آئیڈینٹی کے زمرے میں دکھتے ہوئے آئیڈینٹی کرائسس یا شناخت کا بحران کی طرف اشارہ کرتے نظر آئے کہ گویا انسان کسی ایک کیمپ یا ثقافتی قالب میں پوری طرح فٹ نہیں بیٹھتا. مگر میرا نقطہ نظر اس سے یکسر مختلف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی رنگا رنگ تہدار اور متنوع شناخت ایک بو قلمونی شخصیت دراصل روحانی، فکری اور تخلیقی ارتقاء کے لیے ایک زرخیز زمین فراہم کرتی ہے. مونا شہاب صاحبہ کی شاعری میں ان کی شناخت کے تمام رنگ اپنی پوری شدت اور نزاکت کے ساتھ موجود ہیں. یہ شناخت کو رکاوٹ نہیں بلکہ تخلیقی قوت کی بنیاد ہے. ان کے کلام کو اسی سیاق و سباق میں دیکھنا اور سمجھنا چاہیے جہاں مشرق و مغرب، روایات و جدت، مذہب و جدیدیت اور شناخت و تلاش کا دلچسپ امتزاج سامنے آتا ہے. امیر مینائی کا ایک شعر ہے بڑا مشہور، وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا. یقیناً ہجرت کے تجربات اور دنیا کے مشاہدات نے مونا شہاب کی فکر کو نکھارا ہے. دیکھیے شاعر کی بڑی بنیادی چیز ہوتی ہے کہ اس کے اندر کتنی احساس کی نزاکت اور کلام کی پختگی. تو میں کوئی مثال اس کا دیتا ہوں تمہیں. یہ درد تمنا مجھے جینے نہیں دے گا،
फैला है तेरी चाह का सरतान बदन में। वाह ये दर्द तमन्ना मुझे जीने नहीं देगा, फैला है तेरी चाह का सरतान बदन में। और अगला शेर सुनिए कितना खूबसूरत है। शहरक से है लिपटा हुआ हर सांस का धागा, शहरक से है लिपटा हुआ हर सांस का धागा, गर्दिश ये लहू की नहीं आसान बदन में। वाह क्या खूबसूरत है ना। अच्छा फिर इनके देखिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ आपको नजर आता है एहसास। अभी तक सहन में आती हैं चिड़ियां, ये घर खाली तो है वीरान नहीं, वाह घर खाली तो है वीरान नहीं। हाथ की कटोरी में एक गुलाब रखा है, जैसे मेरी आंखों में मेरा ख्वाब रखा है। रूह तक उतर आई है विसाल की खुशबू, दरमिया में फिर भी एक हिजाब रखा है। इस आखिरी शेर में आप नज़ाकत देखिए ख्याल की, कितनी उम्दगी से इन्होंने कैफियत बयान की है। और मोना साहबा की शायरी में ये निस्वानी शऊर और दर्द नजर आता है आपको, क्योंकि खातून होने के नाते में कुदरती अम्र है। कहती हैं वो लड़की बारिश का मतलब क्या जाने, जिसने बंद खिड़की से मंजर देखा है। वाह फिर कहती हैं मुझको खुली फिजा में है आदत उड़ान की, हरगिज न खुल सकेंगे मेरे पर जमीन पर। वाह एक और जगह कहती हैं बहुत ही खूबसूरत, निजामे जब्र के इस दस्ते आहन से मैं दो हाथ करना चाहती हूँ। वाह निजामे जब्र के इस दस्ते आहन से मैं दो हाथ करना चाहती हूँ, मुझे तस्वीर से बाहर निकालो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। वाह 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 खूबसूरत। अगर आपको इसमें रिवायात की बंदिशों से आज़ादी नजर आती है तो ये भी देखिए कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भी वाकिफ है और हरगिज पहलू तही नहीं करती, एक मजबूत सोच का प्रचार करती हैं। इसका अभी शेख साहब ने भी अशार पढ़े कि छत गिर गई मकान की दीवार रह गई और मैं हवा से बरसरे पैकार रह गई, साथ ही तमाम गैर कबीले से जा मिले और मैं संभालती हुई दस्तार रह गई। वाह इसी तरह वो खातीन की बेचारगी और सुलहजोई की भी तर्जुमानी करती हैं। बड़ा खूबसूरत शेर है, दो आपको सुना देता हूँ। मैं घर सजाने में गुम थी, मुझे खबर न हुई कि अब विसाल के मौसम कभी ना आएंगे। वाह फिर जनाब एक और रंग देखिए, गौर से बात अब सुन तो लीजिए, अपना लहजा बदल रही हूँ मैं। वाह इनके फिक्र पे हरगिज मगरबी हुकूक निस्वां की छाप नहीं। असर हाजिर में मगरिब की तमाम तहरीक खौफ खुदा से आरी और मादर पिदर आज़ाद होती हैं। हमें ऐसी किसी बात का इस किताब में शायबा तक नहीं मिलता। हमें इस किताब का इस तरह की किसी चीज़ का शायबा नहीं मिलता। मोना साहब की कलाम में मज़बूत पैगाम है। खानदान की मरकजियत और औलाद की मोहब्बत इनकी शायरी में आया है। माँ बाप का रिश्ता इनके लिए बहुत अहम है। इस किताब के इंतसाब उन्होंने अपने शौहर, बच्चों और मरहूम बहन के नाम किया है। और लिखती हैं आगे, मुझको यकीन है माँ की दुआओं के फैज़ से माथे को चूमने महू अख्तर भी आएंगे। वाह माँ से वादे को यूं निभाया है, मैंने मिट कर भी घर बसाया है। वाह फिर बच्चों के लिए लिखती हैं, क्यारी के सब नन्हे पौधे पेड़ से ऊंचे हो जाएं, मुद्दत से आंखों में जिंदा एक यही तो सपना है। वाह यहाँ मैं आपको मेराज फैजाबादी का एक मशहूर शेर आपको याद दिलाता हूँ कि मुझको थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। इस शेर में मेराज ने बाप की मजबूरी और जज्बात का इजहार किया है और दुरुस्त किया है, इस पर कोई इतराज़ नहीं। लेकिन ऐसी बात किसी बाप के मुंह से तो निकल सकती है, माँ के मुंह से नहीं निकल सकती है। मौना शहाब इसके बरक्स तमाम माओं की तर्जुमान बन जाती हैं जब वो कहती हैं, चले गए हैं मेरे लाल छोड़कर मुझको, ये घर तो लगने लगा एक सर्द खाना मुझे। वाह इसके अलावा इनकी एक नज़्म भी है इस किताब में, उसका नाम तस्वीर है, क्योंकि औलाद के मौजू पर है। तो ये तो औलाद और माँ बाप का आपको जिक्र आया, लेकिन वो सिर्फ वालिदैन या औलाद रिश्ते को ही अहमियत नहीं देते, उनके नज़दीक दीगर रिश्ते भी बहुत अहम हैं। हैरत है जिसको सारे ज़माने ने रद्द किया, मुझको पसंद एक वही शख्स आ गया। अगला शेर सुनिए, उसका दूसरा मिसरा खास तौर पे, आ सहन तमन्ना में चला आ मेरे दिलदार,
चौखट पे मेरे दिल के तेरा पाँव धरा है, वाह चौखट पे मेरे दिल के तेरा पाँव धरा है। दूसरे मिसरे का देखिए कितना खुश है। लेकिन एक मॉडर्न औरत के तहत इनका ये जो सब रिश्ते ही गैर मशरूत नहीं है। कहती हैं करते हुए ये फैसला मुद्दत लगी मुझे, वो मेरे दिल से यूं ही अचानक नहीं गया। वाह मोना साहब के शेर में एक जो बहुत ही मुझे अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, में चौंका देने का हुनर आता है। और ये शेरी महासिन में आता है कि दूसरा मिसरा गैर मुतवक्को हो और आपको चौंका दे। तुम किसी जाविये से भी देखो, मेरी तस्वीर देखती है तुम्हें। फिर अगला शेर मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। गलत फहमी अंगूठी में जड़ी थी, गलत फहमी अंगूठी में जड़ी थी, मोहब्बत एक कोने में पड़ी थी। क्या खूबसूरत जनाब। गलत फहमी अंगूठी में जड़ी थी, मोहब्बत एक कोने में पड़ी थी। जो भी तस्वीरें लगाना चाहूं उसको दीवार निकल जाती है। लेकिन अब देखिए चौका देना, दूसरा मिसरा रिस्पेक्ट नहीं करते। अब देखिए इसमें भी दूसरा मिसरा आपको कितना अनएक्सपेक्टेड आता है। जनाबे वाला ताजियत मेरी कबूल कीजिए, जनाबे वाला ताजियत मेरी कबूल कीजिए, सुना तो दुख हुआ कि आपका ज़मीर मर गया। वाह वाह सुना वाह तो वाह दुख हुआ आपका ज़मीर मर गया। किताब दिल अगर सच्ची है तो फिर, किताब दिल अगर सच्ची है तो फिर ये हाथों हाथ बिकनी चाहिए ना। ठीक है ना। तो ये आप अच्छा इस पे भी अशार सुनाएं कि अल्फाज की सादगी पर गौर कीजिए। इनमें ख्याल में गहराई जरूर है मगर उलझाव नहीं है। कोई जोलीदा ब्यारी नहीं कि फारसी की तराकीब हो उसमें, इस तरह कुछ नहीं, कोई मुश्किल अल्फाज नहीं है। और जो अल्फाज की नशिश पर बर्खास्त है वो ऐसी है कि हम बोल चाल में इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत मुश्किल है। अब अल्फाज के हेर फेर से शेर फिर भी कह सकते हैं, लेकिन उसको इस कायदे पर रखना कि वो आपकी नस्र की फ्लो पर हो, उसके उस तरीके से वो बड़ा मुश्किल काम है। इनकी शायरी का एक पहलू उनके मुआशरे का मुशाहिदा और मुआशरे पर तनकीद भी है। मैं आंख खोल के दुनिया को देख लूं लेकिन मुझे ये डर है मेरे ख्वाब टूट जाएंगे। वाह कितना प्यारा ये ना, मुझे ये डर है मेरे ख्वाब टूट जाएंगे, बहुत प्यारा। तुम्हें था इल्म के रास्ते में रात आएगी, तुम्हें था इल्म के रास्ते में रात आएगी तो रोशनी का कोई इंतजाम करना था। क्या खूबसूरत है, बहुत अच्छे। तुम्हें था इल्म के रास्ते में रात आएगी तो रोशनी का कोई इंतजाम करना था। शेर तो बहुत से नोट किए थे लेकिन मैं वक्त कभी काफी मैं स्किप कर रहा हूँ। मोना साहब क्या दो और मैं आपको बताऊं, मैं हाथ से बताता हूँ कि इनके यहाँ मंजर कशी भी बहुत खूब है और मंजर से मानी का इजहार बहुत प्यारा है। बंद खिड़की हवा के साथ खुली, अब देखिए जरा सबूर कीजिए। बंद खिड़की हवा के साथ खुली, गर्म चेहरे पे सर्द रात खुली। वाह आसमां से उतर के आया चांद, धीरे धीरे हसीन रात खुली। वाह तो इसी तरह की एक नज्म है नगमा चमन जो मसनवी की सूरत में है। इस नज्म में मंजर कशी की गई है, वो बहुत दिल मोह लेने वाली है और आपको मोना साहब की कराफ का मुख्तलिफ रंग नजर आएगा। गजल में ख्याल के इजहार के लिए जहां दरिया को कूजे में बंद किया जाता है, इसके बरस नज्म में तमाम जुजियात के साथ बात की जाती है। मोना साहब ये दोनों तराकीब कमाखाहू इस्तेमाल करती हैं। यहाँ मुझे इकबाल की एक नज्म एक आरजू बहुत पसंद है, मैं बता रहा हूँ। इसमें फितरत की अक्कासी बहुत खूबसूरत अंदाज में करते हैं इल्हाम इकबाल। वो कहते हैं, मैं आपको उनके अकबर इकबाल कुछ शेर सुना दूँ आपको, उसके बाद मोना साहब को बताता हूँ कमेंट। वो दिल फरेब ऐसा कोहसार का नज़ारा, इकबाल फरमा रहे हैं, वो दिल फरेब ऐसा कोहसार का नज़ारा, पानी की मौज बनकर उठ उठ के देखता हो, आगोश में जमी की सोया हुआ हो सब्जा, फिर के झाड़ियों में पानी चमक रहा हो, पानी को छू रही हो झुक झुक के गुल की टहनी, जैसे हसीन कोई आईना देखता हो, मेहंदी लगाए सूरज जब शाम की दुल्हन को, सुर्खी लिए सुनहरी हर फूल की कबा हो। अब जरा
مونا صاحب کے نغمہ چمن میں جو کہ اسی بحر میں ہے. آپ اس میں دیکھیے اس میں کس طرح انہوں نے فطرت کی عکاسی کی ہے. کیاری میں زرد رنگت گیندا کھلا ہوا ہے, یا سبز تھالیوں میں اکتن سجا ہوا ہے. واہ چہرہ گلاب کا ہے کیا خوب تازہ تازہ, قدرت نے اپنے ہاتھوں سے مل دیا ہے غازہ. واہ دیکھو شریر بھورے کچھ گنگنا رہے ہیں, جو ہی کے پھول ہنس کے دامن بچا رہے ہیں. دیکھیے کتنی ہنرمندی سے یہ اشعار کہے گئے ہیں کہ لگتا ہے کہ اقبال کی نظم ایک آرزو کا ہی سلسلہ ہے. کیونکہ میں آپ کو یہ اعتراض طور پہ نہیں کہہ رہا, میں آپ کو یہ تعریف پہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اردو کے استاد ہے اقبال, ہمارے اساتذہ میں ہمارے ائمہ میں سے آتے ہیں, ان کے جو ایک رنگ ہے, ان کا جو سٹائل ہے وہ مونا صاحب کے بھی نظر آتا ہے. اور میں اس لیے بھی بات کرنا چاہتا کہ لوگ عموماً غزل کی بات کرتے ہیں, نظم کی باتیں نہیں کرتے, اور میں خاص طور پر یہ ذکر کرنا چاہتا کیونکہ منظر کشی اس نظم کا بہت خوبصورت نظم ہے. ایک اور جو آخری جو ان کے محاسن ہے بہت اہم, وہ ان کا ردیف کا استعمال ہے. بڑی انوکھی ردیف استعمال کرتی ہیں اور بہت عمدگی سے کرتی ہیں. یقین گما کے درمیان سوال یا نشان ہے, یقین گما کے درمیان سوال یا نشان ہے, میرے لیے تو یہ جہاں سوال یا نشان ہے. واہ سوال یا نشان ہے. کتنے مزے کی اس میں ردیف ہے. اب یہ دیکھیے, رواں دواں ہے زندگی دیا نہیں جلا تو کیا, رواں دواں ہے زندگی دیا نہیں جلا تو کیا ہے, دل میں میرے روشنی دیا نہیں جلا تو کیا. واہ سبحان اللہ, دیا نہیں جلا تو کیا. کتنی مشکل اور منفرد ردیف ہے. اس پر خیال باندھنا آسان کام نہیں ہے, لیکن مونا صاحبہ نے پوری غزل کہی ہے اس پہ, بہت کمال کی بات ہے. ایک اور آپ کو انتہائی مشکل آپ کا ردیف بتاتا ہوں. چمن میں کام تتلی کر گئی دیکھو سحر دم, گلوں میں زر کے دانے دھر گئی دیکھو سحر دم. اب اس شعر کے دیکھیے, گئی دیکھو سحر دم. ارے بھائی بہت ہی مشکل ہے, انتہائی مشکل ردیف ہے یہ. لیکن پھر وہی کہ مونا صاحب کی ایک یہ کرافٹ ہے اور مجھے بہت پسند ہے. اگرچہ چند لفظوں میں اس کتاب یعنی ستارہ رسم ہے کی تاثیر کو سمیٹنا ممکن نہیں, تو آپ اتنا ضرور کہوں گا یہ کتاب دل کی گہرائیوں کو چھو لینے والی ہے. میری خوش بختی کہ سب سے پہلے مجھے اس کتاب کے مطالعے کا موقع نصیب ہوا, اور آج اسے بڑھ کر خوشی کی بات یہ ہے کہ مجھے اہل علم و ادب کی معزز اور عظیم وقار محفل میں اس کتاب پر تاثرات پیش کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. یہ بھی میرے لیے اعزاز کم نہیں کہ اس علمی نشست میں دو نہایت محترم اور ممتاز ادبی شخصیات محترمہ مونا صاحب صاحبہ اور ڈاکٹر فاطمہ حسن سے ملاقات ہو رہی ہے. آپ دونوں خواتین کی یہاں آمد کا بہت بہت شکریہ. معزز حاضرین محفل, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ جیسے صاحب علم, صاحب ذوق اور سنجیدہ فکر احباب کی آمد اس محفل کو وقار عطا کر رہی ہے اور ہماری حوصلہ افزائی کا سبب بن رہی ہے. میں دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں محترمہ نیلوفر عباسی صاحبہ کا بھی, جن کی بصیرت اور فراست نے اس تقریب کو جنم دیا. قمر علی فاؤنڈیشن کا بھی تہہ دل سے شکریہ. اس کے علاوہ جناب اشفاق خان صاحب کا جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, جو اس مون لائٹ بینکویٹ ہال کے مینیجر ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں. دعا ہے کہ اردو زبان و ادب کی خوشبو اسی طرح بکھرتی رہے اور ایسے علمی و فکری اجتماع کے ذریعے ہم اپنی زبان, اپنے ادب اور اپنے تہذیبی حصے کو آئندہ نسلوں تک منتقل کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سی صاحب, آپ نے کی نوٹ اسپیکر ہونے کا حق ادا کر دیا. ادب, شاعری, فن کسی کی آیا تھا اور ریڈیو کا معیار انتہائی بلند تھا اس وقت. زوالوجی میں ماسٹرز کی ڈگری بھی اچھے نمبروں سے حاصل کی, لیکن زوالوجی کو خیر بات کہہ کر ٹیلی ویژن کے پروڈیوسر بن گئے اور ایسے ایسے ڈرامے اور سیریلز پیش کیے کہ دیکھنے والے اش اش کر اٹھے. خاص طور سے تاریخی ڈرامے, وہ کبھی فراموش نہیں کیے جا سکتے ہیں. جی ہاں, میں بات کر رہی ہوں قاسم جلالی صاحب کی, جو کہ پی ٹی وی پر پروڈیوسر سے لے کر جنرل مینیجر تک کی منازل طے کی انہوں نے, اور ایک نہایت کامیاب صداکار اور اداکار بھی رہے جنہیں لوگوں نے بے حد پسند کیا. پی ٹی وی میں سب انہیں دادا کہہ کر بلاتے تھے, بلکہ بلاتے ہیں فلموں والے دادا نہیں بلکہ بڑے بھائی. کے مہمان خصوصی ہیں جناب محترم قاسم جلالی صاحب, تشریف لائیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मुन्ना साहब साहिबा की किताब की रूनुमाई में जमा हुए हैं और अपनी उर्दू ज़बान से और उसकी लगन और मोहब्बत का इजहार करने के लिए, मगर मुझे ये महसूस नहीं हो रहा कि मैं यहाँ हूँ पश्चिम में या यूरोप में, मैं हूँ कहाँ, अमेरिका में। तो ये ज़बान की खूबी हो कि वो जब उसके चाहने वाले उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं तो वो उसका रंग ही बदल जाता है। और फिर शायरी तो है ही रंग बदलने का नाम, तो उसमें जोश हो, खरोश हो, मोहब्बत का अंसर हो। तो मुजस्सम शायरी यही है कि जो आपके एहसासात को, आपके ख्यालात को, आपकी हसरतों को, आपके ख्वाबों को खास तौर पर उसके बारे में बयान करे, और यही सुन करके आदमी को तमाम और राहत महसूस होती है और वो शौक से आता है और जमा होता है और उस शायरी को सुनता है। तो मजे की बात यह है कि बकमाल शायरी की है। मैं शायर नहीं हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक शायर। उन अशार की फोटोग्राफी करता हूं, उससे मैं शायरी करता हूं। मैं बताते कुछ शायर नहीं हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छा शेर कहना भी कोई आसान काम नहीं है। और जिन रदीफ और काफियों का इन्होंने इस्तेमाल किया है बरमला, और जो अल्फाज और जबान का इस्तेमाल किया है वो मतलब बाकमाल। मतलब मर गया जो बहुत सख्त लफ्ज, फिर उसकी तर्जमानी में आखिर में आती है जमीर। तो जमीर और खमीर इसी का किसी को तो शायरी कहते हैं। ये जहद है, और ये जहद वो है कि जिसे आप हम भुला नहीं सकते। ये क़िबला नुमा होती है। इसका हर औराक आपकी जिंदगी का लिखा हुआ एक एक लफ्ज आइंदा जाने के लिए, आइंदा पहुंचने के लिए बहुत बड़ी नेमत साबित होता है। तो ये अशार नहीं है, ये अशार नहीं है, ये वो बातें हैं जो आपके दिल को लगती हैं, आपके एहसासात को लगती हैं, और फिर आप उसको रिएक्ट करते हैं, रद्द अमल। तो शायरी असल में रद्द अमल का नाम है। इंसानी ज़मीर और खमीर का आयनादार होती है। तो वो जो ज़मीर का लफ्ज इस्तेमाल किया है तो मर गया के साथ, उसमें आप देखिए पूरी तारीख आपके सामने आ जाती है। तो ये तो सही है, और सब लोगों ने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती से साथ उनके अशार पढ़ के और उनको सेलेक्ट करके आप लोगों के सामने पेश किया। वाकई इसमें कोई शक शुबा नहीं। मैंने भी बेशुमार मुशायरे किए हैं, मेरे भी तकरीबन बड़े बड़े शायरों से बड़ी मुलाकातें रही हैं, और मेरे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त शायर रहे हैं, चाहे वो इफ्तिखार आरिफ हों, उबैदुल्लाह जिम हों। तो इस किस्म के शायर जो बड़े बड़े हैं, कौन सा ऐसा शायर है जो उस शहर में रहा हो या मुशायरे में हमसे किसी न किसी तरह मुलाकात। ड्रामे के हवाले से भी, बाज़ दफ़ा गीत और संगीत के हवाले से भी हमें लिखवाना पड़ता है, तो बड़ी खूबसूरत शायरी हमारे सामने आती है। बहरहाल ये इनका कमाल है, और वाकई जब मैंने भी पढ़ा तो मैं हैरत ज़दा रह गया। और मैंने तो अब जब इन्हें देखा तो देखने के बाद मैंने कहा यार ये तो मोनालिसा है, ये तो मुस्कुराहट देती हैं और कभी कभी बेचैन भी कर देती हैं। दोनों चीजें उनकी शायरी के अंदर मौजूद है। तो देवी है, चाहे वो वीनस की हो चाहे वो लूना की हो। बहरहाल इन्होंने कमाल किया है।
यहां बैठकर हिजर का तो गम होता है और बगैर हिजर के शायरी नहीं होती, बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो उसका सेंट्रल आइडिया है, जब तक उसमें हिजर ना आए तो शायरी मुकम्मल नहीं होती। जब उसकी दास्तान में गम ना हो तो वो दास्तान नहीं होती। और हिजरत तो भाई बड़ी अच्छी चीज का नाम है, ये तो हमने अपने ऊपर सवार कर लिया। इसे तो हमारे नबी ने सबसे पहले हिजरत की थी, तो ये तो नबियों और वलियों का वसीला है, इससे न डरो। अब तो हो रही है हिजरत, डर हिजरत, वर हिजरत, क्यों हिजरत? मजबूर है कि इंसान हिजरत करे। जब उसकी जमीन तंग होने लगती है, रिस्क उड़ने लगता है, तो परवरदिगार परिंदों को भी कहता है उड़ो तुम यहां से, हिजरत करो और मुकाम पर पहुंचो कि जहां तुम्हें अल्लाह ताला दाना फराम करने वाला है। तो हिजरत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसका गम बहुत बड़ा है। और जिस अंदाज से इन्होंने उसमें अशार पढ़े हैं, तो वाकई दिल चाहता है कि दाद दी जाए और खुलकर दाद दी जाए कि अल्लाह ताला ऐसे ऐसे अच्छे शायर और पैदा करे और इस सरजमीन को रंगीन करे। और माशाअल्लाह फिर उसमें इक़दार की, कदरों की कितनी वैल्यू। आप ये देखिए, कदरें ही तो इंसान को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं और देखती हैं कि कौन क्या है। तो कदर ना हो तो आप और हम तब बेकदरे हो जाएं। तो अपने घर से चलती है नसीहत और मोहब्बत, अपने घर से चलती है। तो घर का जो, और माशाअल्लाह घर वालों से और जो बच्चों से इनकी मोहब्बत है, तो वो उसके अंदर उभर के आती है। तो ये मशरिक की शायरी है, ये मगरिबी शायरी नहीं है जो मादर पिदर आजाद हो। इसमें बंदिशें हैं, और वो बंदिशें यही हैं कि देखो कि तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी भी बैठी है, बाप भी बैठा है, उस लिहाज से सोचो जो बात सोचनी है, कि उन कदरों को उस लिहाज से ढका छुपा करके बात करो। यही कमाल है शायरी का, और यही कमाल है कि अपना मौक़िफ़ भी बयान कर दो जो दिल में उतर जाए और उतरता चला जाए और अपनी जगह बनाए। तो मेरे दोस्तों, मैं जितनी भी तारीफ है, मैं अच्छा शायर होता तो जरूर, लेकिन इन लफ्जों में यही कहूंगा कि लफ्जों को पुरोना इतना आसान काम नहीं है। ये तो ऐसा लग रहा था कि रदीफ और काफिया हाथ बांधे खड़े हैं और ये इशारे कर रहे हैं, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर चले जाओ, तुम इधर रुक जाओ। बहरहाल अल्लाह ने मुबारक करे इनकी इस मेहनत को और इनकी इन सलाहियतों को और ऊपर लेके जाए परवरदिगार। मगर अब एक मेरी गुजारिश है जो जरा मुश्किल तर है, मगर ये कि अगर आजमाने वाले अगर उसे आजमाएं और थोड़ा बहुत उसमें इनका है, उसमें है कंट्रीब्यूशन, उसका कंट्रीब्यूशन है उस दिए का कि वो किस तरह से उस हवा से उसको बचा के लाती है। और पगली का लफ्ज इसमें देखिए किस कदर खूबसूरत और कितने मायनेफुल है, वो जिस अंदाज से कहा जाता है। तो भाई अभी तो आप चराग और हवा से इसे बढ़ा देंगे, जरा बाहर निकल के देखिए कि ये जो सूरज की तमाज़त क्या कह रही है, ये जो सूरज की तमाज़त है ये क्या कह रही है, इसका भी फर्ज है। इनके हैं अशार, बहुत सारे अशार हैं। आंगन में जहाँ घर बनाने जाते हैं सब्जा नहीं है, वहाँ परिंदे डोल रहे हैं, और कई अशार ऐसे हैं जो उससे रिलेट करते हैं। क्योंकि जो डिजास्टर आपके सर की पर आ रहा है, जो इन्वायरमेंटल जो चेंजेस आ रही हैं, तो जिसके लिए आप शेयर कर रहे हैं वही नहीं होगा तो क्या फायदा। तो उससे भी आगाही जरूरी है। और ये हम शायरों को बहुत खूबसूरत अल्फाज में इन बातों को बयान कर सकते हैं। और वो चाहे
कुछ भी हो, थोड़ी सी नसीहत ही सही, लेकिन अगर जो इनका अंदाज है, जो मसलक है, उसके साथ बयान करेंगी इस प्रॉब्लम को, तो वो हाईलाइट होगा और करना चाहिए। क्योंकि आप जहाँ रहती हैं ये मगरिब है, यहाँ तो आपको ये चीजें बड़ी आसानी से दस्तयाब हुई कि देखिए कि इंसान अब कहाँ पहुंच रहा है, किस मुकाम को चला, आधा मशीन हो गया। जब इंसान आधा मशीन हो जाए और क्लोनिंग की और तमाम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और वो इन चीजों की जब वो पड़ जाए, तो क्या आदमी क्या आधा मशीन बन के रह जाएगा या पूरी मशीन हो जाएगा? पूरी मशीन का मतलब खाना। तो आपने जो चीज बनाई है, अब उसके लिए आपको उसका हल भी तलाश करना है, वरना ये आपके शेर और सुखन को कौन सुनेगा? जब इंसानी नहीं होगा, शायरी तो इंसानों के लिए की जाती है, मशीनों के लिए तो नहीं की जाती। तो जब इंसान मशीनों में ढल रहा है, तो शायरी के लिए आपके लिए नई जहद और नया मैदान, इस नई जहद और नए मैदान को आगे लाएं, आपकी सांसों के करीब लाएं, कि ताकि पता चले कि क्या है, कि दुनिया कहाँ जा रही है। तो ये जब हाल हम देखें तो ये ना सोचें कि हम शायद एशिया के बंदे हैं, हम बच जाएंगे या पना हो जाएगा। नहीं, आप यहाँ मगरिब में बैठे ज्यादा अच्छी तरह से सोच सकती हैं, और आपको यहाँ के बारे में मालूम है, ज्यादा से ज्यादा मालूम है। तो इन सब चीजों को वहां पे जरूर भेजिए जहां साफ पानी पीने को बड़ी आबादी को नहीं मिलता, जहां गैस नहीं मिलती, बिजली नहीं मिलती, दुनिया की उन जरूरतों का नायाब होती हैं जिसके बगैर आप नहीं रह सकते। और यही तो हिजरत है कि मजबूरन इंसान को जाना पड़ता है। ठीक है, हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई तो होती है, मगर हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई वही होती है जहां उसका एतबार हो। तो आप अशार से एतबार पैदा कीजिए और लोगों को बताइए कि इस दुनिया में अब क्या होने जा रहा है या क्या होने वाला है। तो इन तमाम चीजों का भी मेरा बहुत अर्ज करूंगी कि इनको भी करें। हैं, एक जमी को और मुश्किल में न डालो ऐ जमी वालों, बचा लो अपनी दुनिया को, बचा लो ऐ जमी वालों। न ख्वाबों के जजीरे हैं, वो खत्म हो गए जो आप ख्वाबों में जजीरे बताते थे, सब डूब रहे हैं पानी में। न ख्वाबों के जजीरे हैं, न मुझे थोड़ी बहुत याद है, न ख्वाबों के जजीरे हैं, न अब यादों के जंगल हैं, सब जलते चले जा रहे हैं। तो अब शायरी में फिर क्या लाओगे? न यादों के जंगल हैं, जहां देखो जिधर देखो धुएं के काले बादल हैं। घटाएं, मोहब्बत की घटाएं, अब मोहब्बत की घटाएं आलूदगी से अब कहां बरसे हैं। मोहब्बत की घटाएं आलूदा होकर अब कहां बरसे। तो इस तरह की चीजें जो जहन में आती थी, बचा लो अपने साहिबानों को, बचा लो ऐ जमी वालों, जमी को और मुश्किल में न डालो ऐ जमी वालों। बताओ और लूटोगे जमी का भागपन कितना, बताओ और लूटोगे जमी का भागपन कितना। ये सूरज की तमाज़त से जलाओगे जिस्म कब तक, ये हवाओं की कसाफत से ये सीनों में जलन कब तक, रवा रखोगे फितरत से बगावत का चलन कब तक। तो देखिए, हम इसी बगावत के लिए कदम उठा रहे हैं, अपने माहौल को अच्छा बनाने के लिए तो कदम उठा रहे हैं। वरना देखिए, शेर अशार किसने नहीं कहे। अल्लामा इकबाल ने मशरिक
और मगरिब के बारे में नहीं कहा कि धुआं, सनतें। गालिब का एक शेर तो अजीब गरीब था जिसने साइंस की दुनिया में एक तहलका मचा दिया। अब हो सकता है कि उस शेर को अपनाने के बाद जो है ये थर्मोडायनेमिक्स का लॉ आया, थर्मोडायनेमिक्स में इसका सेकेंड लॉ। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और destroyed, only transform one form to another form. Second law of conservation of energy. और गालिब कहते हैं सब कहा कुछ डालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी जो पिन्हा हो गई। वाह! तो अब अंदाजा लगाए 1850। मैंने शेर को देखना चाहा तो मैंने कहा देखो तो सही इसरा ये कब हुआ है, 1850, और गालिब उससे पहले दिख चुके थे। तो आपके शोरा जिनके इतने अजीम रहन थे लोग इस तरह से, आप गोयटे को देख लीजिए, जिसने अल्लामा इकबाल के मशरिकी कल्चर को अपनाने की कोशिश करी, उसने उन्हें अडॉप्ट किया और सही कहा कि इकबाल सही कहता है कि मशरिक और कल्चर मशरिक में है। मशरिक जहां से सूरज तुलू होता है, मगरिब जहां गुरूब होता है। तो वो तकरीबन गोयटे ने इस किस्म की भी नज़में लिखनी शुरू कर दी थी कि जिसमें उसका ये पता चलता था कि अब वो मशरिकियत की तरफ उसका रुझान बढ़ रहा है। तो आप अंदाजा लगाएं तो इन शायरी हैं। अब रस्में रुनमाई कर दी जाए, हाँ, हाँ। काफी वक्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलोफर। इस वक्त मैं जो मेरी कैफियत है, जो मैं महसूस कर रही हूँ इस लम्हे में, वो बयान नहीं कर सकती। मेरे लिए सबसे बड़े एजाज़ की बात यह है और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आज मैं कमर अली अब्बासी फाउंडेशन के बैनर के नीचे खड़े होकर मैं ये अपनी किताब की इतनी मोहब्बत से रोनुमाई होते हुए देख रही हूँ। नीलोफर से तो मेरा रिश्ता दोस्ती का है, लगता है सदियों से है ये रिश्ता, लेकिन कमर अली अब्बासी भाई से, जिन्हें हम प्यार से अब्बासी भाई कहते थे, उनके साथ एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा रिश्ता रहा हमेशा। ना सिर्फ ये कि मेरा, बल्कि मेरी फैमिली का भी। मेरे शौहर शहाब और अब्बासी भाई की एक बहुत अच्छी दोस्ती थी, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाली, क्योंकि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत मिलता था और जब भी मिले हमेशा बेहद खुशी का इजहार किया, शहाब ने भी और अब्बासी भाई ने भी। और उनकी दिलचस्प बातें और वो उनकी विटी जो बातें होती थी वो हम सब एंजॉय किया करते थे। तो मेरे लिए एक बड़ी इस वक्त मुझे बहुत याद आ रहे हैं अब्बासी भाई, क्योंकि उनका एक ख़ास अंदाज था शफ़क़त का, मोहब्बत का, जो हमें हासिल रही। तो अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। जितने प्यारे इंसान थे वो यकीनन जन्नत के एक पुरसकून गोशे में होंगे हैं और वहाँ बैठे हुए कोई ना कोई अपनी विट जो है तो अब्बासी भाई की इस यादगार जो एक फाउंडेशन है उसमें मैं बहुत फख्र महसूस कर रही हूँ आज। जहाँ तक नीलोफर का ताल्लुक़ है, मैं समझती हूँ कि ये हमारा रिश्ता जो है वो दोस्ती से और मोहब्बत से गुंधा हुआ है। आज की ये जो खूबसूरत तकरीब जिसमें आप सब लोग शरीक हुए हैं, आप सबका भी बेहद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इतने कीमती वक्त में से आप अपना टाइम निकाल के आए। स्टेज पे दो दोस्त मौजूद हैं और जिन्होंने इजहार ख्याल किया है उनका भी मैं बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगी।
کہ انہوں نے اتنے خوبصورت الفاظ میرے لیے استعمال کیے اور یہ صرف ان کا خلوص و محبت ہے. نیلوفر نے مجھ سے کہا کہ دوستی اور محبت میں کوئی شکریہ نہیں ہوتا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ شکریہ ایک ایسا لفظ ہے جو بہت اثر انگیز ہے اور ہمیں خوشی بخشتا ہے. تو میں ایک بار پھر کہوں گی نیلوفر اور پوری فیملی کو بہت بہت شکریہ نیلوفر. میری خوش قسمتی یہ بھی ہے، ابھی فاطمہ حسن اٹھ کے گئی ہیں باہر، لیکن وطن عزیز سے تشریف لائی ہیں. ہماری بہت معتبر ادبی شخصیت ہے، ہم سب کے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، اور پاکستان سے اپنا کنونشن میں آئی تھی. یہ تو اپنے جاوید اکبر صاحب کی خوبصورت مشاعرے میں شریک ہونے، لیکن ان کی موجودگی سے ہم نے بھی فائدہ اٹھایا، استفادہ کیا اور ہمیں بہت اعزاز یہ حاصل ہوا. تو فاطمہ حسن کی بھی میں بہت شکر گزار ہوں. مہمان خصوصی جناب قاسم جلالی صاحب، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے ہمیں تھوڑا سا شعور آیا ہے، اس وقت سے ہم یہ نام قاسم جلالی ٹی وی اسکرین پہ ہمیشہ چمکتا ہوا دیکھتے رہے ہیں اور ذہن میں پرنٹ ہوا ہوا ہے. یہ نام ہی وہ نام ہیں جن لوگوں نے اپنی صلاحیتوں سے، اپنی محنتوں سے ہمارے ملک کا نہ صرف نام روشن کیا بلکہ ہمارے دلوں کو بھی جیتا ہے. تو یہاں پہ قاسم جلالی صاحب جیسے اور نیلوفر عباسی صاحبہ جیسی شخصیتیں موجود ہیں، اور پروڈیوسر کی حیثیت سے آپ نے لاتعداد ڈرامے جو ہیں وہ ہمیں دیے ہیں. اور ایک ڈرامہ مجھے یاد ہے جس میں نیلوفر بھی ہوتی تھی، عروسہ، بہت ہی مشہور ڈرامہ تھا. تو میں بہت ہی ممنون ہوں سر آپ کی. اب میں اجازت چاہوں گی آپ کو کچھ اپنا کلام پیش کرنے کی. سب سے پہلے ایک شعر. ہاتھوں کی اوٹ کر کے بچہ لائی ہوں دیا، ہاتھوں کی اوٹ کر کے بچہ لائی ہوں دیا، اب لاکھ ڈھونڈتی پھرے پاگل ہوا مجھے. بہت اچھے ہاتھوں کی اوٹ کر کے بچہ لائی ہوں دیا، اب لاکھ ڈھونڈتی پھرے پاگل ہوا مجھے. غزل کے اشعار کی چمنزارے وفا آباد کر کے جا رہے ہیں، چمنزارے وفا آباد کر کے جا رہے ہیں کہ ہم خود کو یہاں برباد کر کے جا رہے ہیں. چمنزارے وفا آباد کر کے جا رہے ہیں کہ ہم خود کو یہاں برباد کر کے جا رہے ہیں. سکوت شب میں پنجرہ توڑ کے سارے پرندے، سکوت شب میں پنجرہ توڑ کے سارے پرندے پروں کو قید سے آزاد کر کے جا رہے ہیں. سکوت شب میں پنجرہ توڑ کے سارے پرندے پروں کو قید سے آزاد کر کے جا رہے ہیں. پہنچ پائے نہ اپنے ہاتھ جب زنجیر تک بھی، پہنچ پائے نہ اپنے ہاتھ جب زنجیر تک بھی، تو زیر لب یہاں فریاد کر کے جا رہے ہیں. چمنزارے وفا آباد کر کے جا رہے ہیں کہ ہم خود کو یہاں برباد کر کے جا رہے ہیں. فاطمہ حسن صاحبہ تشریف آ گئی ہیں، تو فاطمہ جی اجازت. آپ کا شکریہ میں نے بہت ادا کر دیا تھا، آپ نے سنا نہیں. زیر لب تھی بات، کیا آپ نے سنا نہیں. تحفہ کوئی بطور نشانی نہیں دیا، تحفہ کوئی بطور نشانی نہیں دیا، کوئی پیام تم نے زبانی نہیں دیا. ہم کیا گئے، تحفہ کوئی بطور نشانی نہیں دیا، کوئی پیام تم نے زبانی نہیں دیا. اور ہم کیا گئے چمن سے ذرا دیر کے لیے، ہم کیا گئے چمن سے ذرا دیر کے لیے،
तुमने भी पेड़ पौधों को पानी नहीं दिया। हम क्या गए चमन से जरा देर के लिए, तुमने भी पेड़ पौधों को पानी नहीं दिया। तेरी यादों से प्यार करने लगे, तेरी यादों से प्यार करने लगे, हम खिजा को बहार करने लगे। और हमने पूछी थी सिर्फ कीमत दिल, हमने पूछी थी सिर्फ कीमत दिल, आप तो कारोबार करने लगे। हमने पूछी थी सिर्फ कीमत दिल, आप तो कारोबार करने लगे। चंद और कशिश में दूर मेरी बस्ती में वहशतों का आलम है, दूर मेरी बस्ती में वहशतों का आलम है। कुछ पता नहीं चलता रक्स है कि मातम है। दूर मेरी बस्ती में वहशतों का आलम है, कुछ पता नहीं चलता रक्स है कि मातम है। और लोग खाली आंखों से आसमां को तकते हैं, लोग खाली आंखों से आसमां को तकते हैं। एक बार का शायद आखिरी ये मौसम है। वाह लोग खाली आंखों से आसमां को तकते हैं, एक बार का शायद आखिरी ये मौसम है। और बैठे बैठे जाने क्यों सांस घुटने लगता है, बैठे बैठे जाने क्यों सांस घुटने लगता है। आजकल हवाओं में ताजगी बहुत कम है, आजकल हवाओं में ताजगी बहुत कम है। और मेरे नौजवानों की डूबती उम्मीदों का, मेरे नौजवानों की डूबती उम्मीदों का आखिरी सहारा तो मेरा सब्ज परचम है। वाह मेरे नौजवानों की डूबती उम्मीदों का आखिरी सहारा तो मेरा सब्ज परचम है। दूर मेरी बस्ती में वहशतों का आलम है, कुछ पता नहीं चलता रक्स है कि मातम है। और वफा की राह में इतना नाज माना मुझे। देखिए जो मैं सपाट पलट रही हूँ, जो सामने आ रहा है वो मैं पेश कर देती हूँ कि वफा की राह में इतना ना आजमाना मुझे कि बेवफा ही समझने लगी जमाना मुझे। और सफ़र में सारे सितारे मेरे मुखालिफ थे, सफ़र में सारे सितारे मेरे मुखालिफ थे। कहीं मिला न कोई ढंग का ठिकाना मुझे, सफ़र में सारे सितारे मेरे मुखालिफ थे। कोई मिला कभी मिला न कहीं मिला न कोई ढंग का ठिकाना मुझे। और मेरा नसीब ही ऐसा था बाबे हिजरत में, मेरा नसीब ही ऐसा था बाबे हिजरत में कि रास आया कहीं का ना बुदाना मुझे। मेरा नसीब ही ऐसा था बाबे हिजरत में कि रास आया कहीं का ना आबोदाना मुझे। और अभी जिक्र किया था किसी ने परिंदों का कि फ़ज़ा में जब भी परिंदों का गौल देखा है, फ़ज़ा में जब भी परिंदों का गौल देखा है तो याद आया है बिछड़ा हुआ घराना मुझे। फ़ज़ा में जब भी परिंदों का गौल देखा है तो याद आया है बिछड़ा हुआ घराना मुझे। और मुझे पसंद था नौशेरवां का अहद बहुत, फातिमा मुझे पसंद था नौशेरवां का अहद बहुत, पर क्या करूं कि मिला है यही ज़माना मुझे। मुझे पसंद था नौशेरवां का अहद बहुत, पर क्या करूं कि मिला है यही ज़माना मुझे। और चले गए हैं मेरे लाल छोड़कर मुझको। ये हम सबकी कहानी है, हम सबकी एक हकीकत है जिसे हम आंखें बंद तो कर सकते हैं लेकिन गाफिल नहीं हो सकते। कि चले गए हैं मेरे लाल छोड़कर मुझको, ये घर तो लगने लगा एक सर्द खाना मुझे। चले गए हैं मेरे लाल छोड़कर मुझको, ये घर तो लगने लगा एक सर्द खाना मुझे। वफा की राह में इतना ना आसमाना मुझे कि बेवफा ही समझने लगे जमाना मुझे। बस एक चंद अशार और फिर था जिसका फरमाया हुआ इस शहर में, मुस्तनिद था जिसका फरमाया हुआ इस शहर में,
आज देखो उसका हर दावा अधूरा रह गया। और मेरे रब शिकवा नहीं है, ये मेरी फरियाद है। मेरे रब शिकवा नहीं है, ये मेरी फरियाद है। तेरी धरती पे मेरा नक्शा अधूरा रह गया। मेरे रब शिकवा नहीं है, ये मेरी फरियाद है। मेरी धरती पे, तेरी धरती पे मेरा नक्शा अधूरा रह गया। शाख से इस पेड़ का रिश्ता अधूरा रह गया। कद तो बेशक बढ़ गया, साया अधूरा रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया मोना। मोना शाह की अदबी और शेरी खिदमात का एतराफ़ करते हुए आपको कमर अली अब्बासी फाउंडेशन की जानिब से निशान अदब एजाज़ पेश किया जाता है। मैं दावत दे रही हूँ नईम साखिया साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ। साखिया साहब माने हुए अटॉर्नी हैं, अदब व शायरी से शबक रखते हैं, समाजी और सकाफ़ती हलकों में मकबूल हैं। फिल्में देखते ही नहीं बल्कि बनाने में दिलचस्पी रखते हैं और कई फिल्में माशाल्लाह बना भी चुके हैं। PSNT जैसी तंजीम के नौमुंतखब सदर हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया साकिया साहब, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। तशरीफ़ लाइए और मोना शाह की खिदमत में अवार्ड पेश कीजिए, निशान अदब अवार्ड। बहुत अच्छी शायरा है तलत खान। शुक्रिया नीलोफर अब्बासी और यहाँ पे मौजूद साहिब-ए-किताब मोना शाह, तमाम मुक़र्रिरीन में नाम इसलिए नहीं लूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा देर आपके और खाने के दरमियान माइल नहीं रहना चाहती, और वो भी जब इश्तिहार गेस खुशबू आपके करीब हो, हम तो स्टेज पर बैठे हैं तो। लेकिन आज की शाम बहुत खुशगवार और बहुत यादगार है। जो लोग दयार गैर में रह के अदब और शायरी का चिराग जलाए हुए हैं, उनको मैं कहती हूँ कि वो पत्थर पे फूल उगाते हैं। और इस कमाल का मुजाहिरा यहाँ पर किया, देखा। और ये कि जितनी भी गुफ्तगू इस किताब पे हुई बामानी, और जितने अशार कोल किए गए, उससे आपको बखूबी अंदाजा हो गया होगा कि सब पढ़ के आए थे। क्योंकि हमारे यहाँ रस्म इजरा में रस्मी बातें करना एक आम सा रवैया है, मगर आज हमें उसके बरखिलाफ साहिब मुताले लोगों की ऐसी गुफ्तगू सुनने का मौका मिला जिसके बाद ना शायरा के पास सुनाने के लिए अशार बाकी रह गए थे, साहिब सदर के पास कहने के लिए कोई नई बात रह गई है। अवैस नसीर साहब ने कमर अली फाउंडेशन का तारुफ करवाया, लेकिन कमर अली अब्बासी ना किसी तारुफ के मोहताज हैं, ना नीलोफर अब्बासी। नीलोफर अब्बासी को आप पहली बहुत अहम फेमिनिस्ट के तौर पे पहचान सकते हैं, जिस कमाल से ये कहती थी कि मैं बहुत बुरी आदमी हूँ। और इनके साहबजादे बचाहत कभी और बहू को भी मैं दाद दूंगी कि ये ऐसी अम्मा का साथ इतनी खूबसूरती से निभा रहे हैं। लेकिन ये अम्मा बहुत कीमती हैं, ये ख़ानदानी तौर पे भी ये
कोई एकदम नहीं बनता है, उसके पीछे एक सदियों की दानिश और इल्म होती है, इल्म होता है जो उसकी शख्सियत को ढालता है। तो कमर अली अब्बासी के सगे मामू डॉक्टर असलम फरूखी ना सिर्फ वो एक स्कॉलर थे, शायर थे, बल्कि वो एक हमारी तहजीब, वो सकाफत का मुरक्का भी थे। और उनके साहबजादे आप जानते हैं आसिफ असलम फरूखी ने कितने कमालात दिखाए। बहुत कम उम्र में उन्होंने रिसाला भी निकाला, किताबें भी शाये की, और बड़ी बड़ी जो कॉन्फ्रेंस से उसका इब्तिदाई लिटरेचर फेस्टिवल का आसिफ फरूखी ने अमीना सैयद के साथ मिलकर पाकिस्तान में किया, और बहुत कम ना वक्त उनकी मौत वाक़ हुई, जिसका हमें अफसोस है। डॉक्टर असलम फरूखी नीलोफर के मामू थे, मेरे उस्ताद थे, और उन्होंने मुझे बेटी बनाया हुआ था। और इनकी जो ममानी है खुद ताज फरूखी, वो डिप्टी नज़ीर अहमद की ख़ानदान की। तो आप ये सोचिए कि नीलोफर अब्बासी किस ख़ानदान से और किस तहजीबी बैकग्राउंड से हैं, जिसका अक्स इनकी आप शख्सियत में भी नज़र आया। और आज आपने देखे होगा कि कितनी सब्र व तहम्मुल से इन्होंने इतनी बड़ी तकरीर को मुनज़्ज़म रखा। मैं सब लोगों के नोट लेती रही, चाहती थी कि सदर की हैसियत से जो मैं हमेशा करती हूँ कि सबके जो गुफ्तगू है इस पर कम अज़ कम एक जुमला तो कह दूँ। तो सबसे पहले तो मैं उवैस नसीर साहब ने की शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने पुराने दिन याद दिलाए। ये हमारे साथ यूनिवर्सिटी में थे और शोबे सहाफ़त से इनका सहाफ़त से ताल्लुक़ है, तो इनकी याददाश्तें भी दिलचस्प और बरमहल होती हैं। शेख एजाज साहब ने अदबी तख्लीक़ात के जांचने का हुनर इनकी मुना शाहब में देखा, और ये सच्ची बात है जो इन्होंने कही। रिजवान हसन साहब ने की नोट एड्रेस का हक अदा किया और किताब का वाकई भरपूर तारुफ करवाया, ऐसा तारुफ कि दूसरे मुकर्रिरीन के लिए मुश्किल पैदा कर दी। और तीसरा जो इन्होंने हिजरत के मस्बत पहलुओं पर रोशनी डाली, और इन्होंने उसमें निसाई शऊर को भी देखा और उसकी मिसालें भी दी। इनके बाद जावेद अकबर साहब ने ना कहने को तो ये डॉक्टर हैं, लेकिन इतनी शायराना गुफ्तगू की है कि डॉक्टरी पीछे रह गई है और शायरी सामने आ गई है। वैसे भी इनके सारे जो अंदाज हैं और जो इनका तर्ज ज़िंदगी है, तर्ज हयात है, और जो इनकी सारे मशागिल हैं वो अदब और ज़बान से वाबस्ता है, और इनके उर्दू ज़बान से सच्चे इश्क का सबूत हैं। और खुला अगर आपकी कोई वाहिद वो है सौकन है तो वो उर्दू ज़बान है। लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने आपको भी उसके इश्क में मुब्तला कर दिया है, और ये अपने पूरे ख़ानदान को साथ लेकर चलते हैं जो यहाँ मौजूद है। वैसे उसी माशूक से हमारा भी इश्क का रिश्ता है। तो और जो फैसल अजीम साहब, आपने ये तो आए और इन्होंने आकर बड़ी शगुफ्ता अंदाज में गुफ्तगू शुरू की, लेकिन इन्होंने जो बातें कही हैं वो बातें कुछ इस अहद के एतबार से जो इन्होंने इनके यहाँ शऊर देखा और असरी आगाही को टच किया है, तो वो बहुत इनकी बात से बहुत सी बातें निकलती हैं, मगर इस वक्त मैं क्या कहूँ। मैं खुद एक तो निसाई शऊर और असरी आगाही मेरा भी मौजू रहा है, और ये खुद एक ऐसे बाकमाल वालिद के साहबजादे हैं। ये मुझे अच्छा लग रहा है कि हर घराने में की जो फ़िक्र व फ़न है उसको उनकी औलाद आगे लेके चल रही है, वो विरसा मुंतकिल हो रहा है। जमाल मोहसिन मेरे क्लास फेलो हैं, और ये उस वक्त भी फ़काहिया कानून लिखते थे जब ये हम
पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, जर्नलिज्म के तालिब इल्म थे, और आपने देखा कि इनका जो अंदाज़ तहरीर है वो निखरता ही चला जा रहा है। अल्लाह खैर करे। इन्होंने अदब के कूचे में भी कदम रख लिया है, और वो जो मशवरा इन्होंने इशारा किया है वो मैंने इनको ही दिया, मैंने खुद दिया था। मैंने कहा तुम अच्छे खासे लिखने वाले हो, मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को किताबों पे बातें करते देखा है जिन्होंने शायद किताब को हाथ भी नहीं लगाया, कुछ और मैदान में बाकमाल है। तो ये इन्होंने वाकई बहुत खूबसूरत तारीख महफिल को में एक रौनक पैदा कर दी, और आप सबको शगुफ्ता कर दिया आपके इस माहौल को। कासिम जलाली साहब ने बड़ी भरपूर जिंदगी गुजारी है। इनके बारे में कुछ कहना सूरज को चराग दिखाना है, और इनका जितना इल्म है, जितना तजुर्बा है, उसके लिए एक महफिल तो काफ़ी नहीं, और वो भी वो महफिल जो दूसरों के लिए सजाई हो। तो इनके लिए तो आपको एक अलग से महफिल करनी चाहिए, और जो मशवरे इन्होंने दिए हैं उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। शायर को कभी मशवरा नहीं देना चाहिए, नस्ल निगाह जरूर आते हैं कि आप तबलीग करते फिरे। और इनके बाद और कौन, इनके बाद तो फिर मैं ही आई हूँ, लेकिन आने आई कानिया का नाम क्यों रह गया? कानिया ने तो हक़ दोस्ती भी अदा किया है, और राज दरून खाना भी बताए हैं जो राज नहीं है, क्योंकि जिस खुश मिजाजी और जो खुश अखलाक़ी और मोहब्बत और खुलूस का इन्हें तजुर्बा हुआ है उसका मुझे चंद रोज़ में ही अंदाज़ा हो गया है। अभी मैं इनके मुशायरे में, अपना के मुशायरे में शिरकत के लिए जावेद अकबर साहब की तरफ से मुझे दावतनामा मिला था, मगर हमारे मेज़बानों में जो पेश थे उनमें इन्होंने ये फरीज़ा रज़ाकाराना उठाया हुआ था। जो इनकी खुश अखलाक़ी की दलील है, और जो शायरी सुनाई थी वो भी बहुत अच्छी थी, शायरी आपने यहाँ भी सुनी। अच्छा, इनके इस मजमूए का पहले इजरा आर्ट्स काउंसिल में हो चुका, जिससे मैं वाबस्ता हूँ। अहमद शाह साहब ने जो उसके सदर है, इनके इस किताब के लिए तकरीब का एहतमाम किया था, जो इस बात का सबूत है कि इन्हें एक मोतबर शायरा का दर्जा हासिल है। और क्यों ना हो, ये इनका तीसरा मजमुआ है। अगर कोई तीसरे मजमुए तक अपनी सांस को कायम रखकर इर्तिका की तरफ चलता रहे तो फिर उसका एतबार तो आ ही जाता है, और उसे किसी गवाही की जरूरत नहीं होती। तो हम यहाँ गवाही के लिए नहीं आए हैं, हम सिर्फ इस एतराफ़ के लिए आए हैं कि हमारे कबीले में एक अच्छी शायरा मौजूद है जो बाशऊर भी है, बाकिरदार भी है, बाइखलाक भी है, जिसे समाजी शऊर भी है, जिसे निसाई शऊर भी है। अब मैं सिर्फ दो जुमले निसाई शऊर पे इसलिए कहूँगी कि हमारे यहाँ फेमिनिज्म के नाम पर बहुत सी गलत फहमियाँ हैं। दरअसल मेरी किताब है उर्दू शायरात और निसाई शऊर 100 बरस का सफ़र, जिसमें मैंने कोई 100 शायरात के हवाले से निसाई शऊर को उजागर किया है। तो इनके यहाँ वो शऊर बहुत नुमाया नज़र आता है, और वो शऊर क्या है? वो शऊर है जो इंसान को इंसान बनाता है, और जेंडर न मर्द है न औरत है, वो एक फर्द है, और फर्द के पास अगर शऊर ना हो तो वो फिर इंसान नहीं है। यही तो फर्क है और जानवर में, कि जानवर में शऊर नहीं होता और इंसान में शऊर होता है। तो मैंने अपनी किताब में 2 सवाल उठाए हैं कि क्या हमारी तारीख में औरत के शऊर को तस्लीम किया गया, क्योंकि 2020 से मैंने अपनी किताब का आगाज़ किया है, 1920 से 2020 तक। जो पहली शायरा बाशऊर नज़र आई जिस पर मैंने PhD की थी डॉक्टर असलम फरूखी साहब के निगरानी में, वो जाहिदा खातून शरवानिया थी। उनका नाम भी तारीख़ अदब उर्दू में नहीं था, और 100 बरस तक उन पर कोई तहकीक इस तरह की नहीं हुई थी। जब मैंने ये मकाला लिखा तो उनको तारीख़ अदब में दाखिल किया गया। तो जब आप तारीख़ में, अदब की तारीख़ में नहीं बल्कि दुनिया की तारीख़ में भी, और किसी हर खित्ते में, ये सिर्फ नहीं कि बड़े सग़ीर में, सारी दुनिया की औरतों को ये शिकवा है कि उनका जिक्र तारीख़ में नहीं है। तो क्या इतने अरसे में
औरतों ने कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब है कि उनके शऊर को तस्लीम ही नहीं किया गया और उन्हें इंसान ही नहीं समझा गया और ऐसे मफरूज़े फैलाए गए जो औरत के एक फर्द की हैसियत से औरत की ज़ात पर तोहमत थे, उनमें सच्चाई कोई नहीं थी। और उस शऊर को, उस उन मफरूज़ों को और उन रिवायात को जो औरत मुखालिफ सदियों से चली आ रही हैं और सारी दुनिया में चली आ रही हैं, सारी दुनिया की औरतें अपने अपने अंदाज में रद्द कर रही हैं। ना मेरा फेमिनिज्म ब्लैक फेमिनिज्म जैसा हो सकेगा, ना मेरा फेमिनिज्म लैटिन अमेरिकन फेमिनिज्म जैसा हो सकेगा। मेरा फेमिनिज्म तो बड़े सगीर का फेमिनिज्म होगा जो जाहिदा खातून शरवानिया में भी था और जो हाल ही में भी था। तो ये नहीं है कि फेमिनिज्म कोई औरत और मर्द का झगड़ा है, ना कोई ऐसी ये है कि ये औरतों का की तरफ से लिखा जाना वाला औरतों के लिए कोई बयानिया है, बल्कि ये वो शऊर है जो अगर मर्द में भी हो कि वो कुछ तयशऊरी तौर पे कुछ ऐसे काम करता रहा है और कुछ ऐसी आदतों को अपनाए हुए है, जैसे औरत की तज़हीक, गाली, बुरी से बुरी गाली, बहुत से लतीफ़े औरतों से वाबस्ता रहे हैं, उनको कमज़ोर मानना और उनको कमतर मखलूक समझना, ये सब। तो अगर इसको कोई रद्द कर रहा है, वो औरत हो या मर्द हो, वो फेमिनिस्ट है। अगर उसको तक़वियत दे रहा है तो वो फेमिनिस्ट नहीं है। इतनी सी बात है, ना ये जेंडर का मसला, ये एक फ़र्द की बात है। अब मैं इस हवाले से सिर्फ, चूँकि गज़लों के बहुत हवाले दिए गए हैं, तो मैं इनका शऊर मुझे नज़्मों में नज़र आया और जो असरी आ गई, फैसल आपके बाद का मैं आगे बढ़ाती हूँ, इन नज़्मों में नज़र आई जो जिसका आपने भी हवाला दिया है, मेरा ख्याल है सोच और गुड़ का पराठा। ये दो ऐसी नज़में हैं जो आपको बिल्कुल वाज़े तौर पे ये बता देंगी कि ये न सिर्फ एक अच्छी शायरा है, बल्कि एक बहुत बाशऊर शख्सियत है जिनका मुतालिया भी है, जिनको अपने समाज में होने वाली तमाम तर हादसात और जो तगय्युर हो रहा है, जो हमारे यहाँ बेहिसी छाई हुई है, उन सब का इनको इदराक है और वो उसे लिख रही हैं। सोच इनकी नज़्म मेरी इस बात की गवाह है कि औरतें उन मफरूज़ात को रद्द कर रही हैं जो उनके बारे में और मर्दों ने कायम किए हुए थे। मर्दों ने क्या, लिखने वालों ने कायम किए गए थे और वो हमारे लाशूर का हिस्सा बना दिया गया था। इस नज़्म को मैं पढ़ के सुनाती हूँ। शाम के धुंधलके में न्यून साइन के नीचे बीच उस चौराहे पर एक दुख्तरे हुआ, कामनी हंसी सूरत, नूर में ढली मूरत, आते जाते लोगों को कुछ इशारा करती है। अब इस इशारे को लोग क्या क्या माने देते हैं। हो सकता है वो भूखी खड़ी हो, कुछ भीख मांग रही, मदद मांग रही हो, लेकिन जहन में ये आएगा। पार उस सड़क के दो नेक बेटे आदम के देखकर अजब मंजर अपने अपने जहनों की खिड़कियां बजाते हैं, अपने अपने जहनों की खिड़कियां बचाते हैं। एक सोचता है ये हाथ के इशारे से पास जो बुलाती है कोई फाहिशा होगी, पास जो बुलाती है कोई फाहिशा होगी। दूसरा समझता है हाथ के इशारे से रास्ता दिखाती है कोई राहिबा होगी। असलियत तो बस ये है इंतखाब लफ्जों का, बंदोबस्त जुमलों का, हेर फेर नुक्तों का। इस जहां में इंसान की सोच को बनाता है, सोच को दिखाता है। मैं आप सबसे कहूंगी कि जब शायरात को पढ़िए तो उनकी सोच को पढ़िए, अपनी सोच और अपनी लफ्ज़ियात को उन पर ना मुस्तमद करिए। बहुत